यस। नितेश वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। Okay. So Nitish, just we are going to start with the sequel. Okay. थोड़ा सा ओके। थ्योरी हमने कवर अप किया था। हम्म। And, अब जो चीजें चलेंगी वो थोड़ा प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों एक साथ चलेगा। ओके। ओके। तो आपको क्या करना है, इस चीज पे आपको कंसंट्रेट रखना है कि भाई आपका जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। ओके। ओके। जैसे कोई भी ग्लिच ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। उससे पहले आई गिव यू अ सिंपल टूर कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अप इन सीक्वल, क्या क्या चीजें हम कवर अप करने वाले हैं। एक छोटा सा एजेंडा हम लोग सेट कर लेते हैं ताकि हमारा आगे जाके कोई भी ग्लिच ना हो, मतलब तो कोई टॉपिक मिस ना हो। ठीक है, वी फॉलो दिस पर्टिकुलर टूर। ओके। So first of all, we are going to cover up DDL. DDL is basically stands for Data Definition Language, where we can learn about the how to create the database and how to create tables, how to handle the data modeling part. Okay. So ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं? DDL के अंदर आती है। So basically in DDL we are going to discuss the structure of the database. ओके। Okay. Not about the data, we are discussing about the structure of the database. Okay. ओके। In this particular part, we are covering some basic SQL queries like use, okay, show tables, show databases, truncate, DESC. ये कुछ basic queries होती है. We are going to discuss about it. What the uses of this, because for the DDL purpose, these are the important section. But ये यहाँ पे UI based भी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं. बट आपको ये क्वेरीज भी आनी चाहिए. इफ यू डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटीज लाइक यूआई अपॉर्चुनिटी, यूआई एक्सेस नहीं है, तो यू कैन यूज द क्वेरीज आल्सो, एज वेल एज क्वेरीज आप भी यूज कर सकते हो. And the second one is table creation. Table creation is what we are going to discuss about the table structure. तो जैसे आप एक्सेल में एक पूरा का पूरा शीट डिजाइन करते हो, like in that same format we are designing the table structure, and we also decide the particular column data types. Okay, we will discuss in details what the data type and what kind of data types we are using in this. Okay, and the part 2 is what constraint. This is a very important section in this sequel, whenever you are learning about the data definition language DDL part. So constraints is what we are going to discuss about the keys, primary keys, foreign keys, candidate keys. Okay. And we are also discuss about the composite keys. Okay. And also learn about the default, not null, unique. These are the constraints which we are using in the database designing part. Okay. After that, we are going to study about what? Alter queries. तो होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. तो whenever you are doing some changes in a structure, like if you want to change the database, if you want to change the name of the table, if you want to change the name of the column, if you want to move the column from one location to another location, if you are, want to shift your column from the first position to next position. Okay, so you need to use what? Alter queries. Okay, so suppose if you want to drop some if you want to drop a column or table, anything, whatever it was, you can drop the database also. So we are using also, we are also learning about the drop commands. Okay, so this is your first part which we are using in this. And on that basis, DDL के basis पे I'll give you some assignments. एक छोटा सा मैं assignment format आपको बता देता हूँ. मैं आपको चीजें समझा दूंगा, then you have to perform accordingly. Okay, so this is not our assignment. Let me pick up your assignment on Thunder. ओके, तो स्टार्टिंग असेसमेंट कैसे रहेंगे, मैं एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मेट उठा देता हूँ. लाइक आई विल शेयर विथ यू दीज टाइप ऑफ पिक्चर्स. ओके, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होते हैं. इनके पूरा
कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि हाउ कैन वी यूज दिस, कैसे हम इन्हें रीड करते हैं, और इनके बेसिस पे ही हम सारे डेटाबेस डिजाइन करते हैं. ओके, ओके विदाउट यूजिंग दिस आप इसका कोई भी क्वेरी सेक्शन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. अगर आपको क्वेरी सेक्शन सॉल्व करना है तो आपको ये डायग्राम होना बहुत जरूरी है. अगर ये डायग्राम आपके पास नहीं है और आपको टेबल स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपको स्ट्रगलिंग हो जाएगा इसके. ओके तो दीज आर द असेसमेंट पार्ट. ये आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे. ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारी चीजें मिलेंगी. लाइक दीज आर दी असाइनमेंट्स, दीज आर बेसिक असाइनमेंट्स. ओके, ओके तो अप्रॉक्सिमेटली आई गिव यू, ये कॉलेज लेवल असाइनमेंट्स होता है, नॉट अ इंटरव्यू क्वेश्चन, डोंट थिंक अबाउट इट. ओके, तो ठीक ये सिर्फ आपको सिंटैक्स प्रैक्टिस, आपका जैसे लॉजिकल बिल्डिंग वगैरह में आपको हेल्प आउट करता है. ओके Approximately I help you at least 7, 80, 90 or 115, 150 something questions each database format. Okay. ठीक ओके तो इसमें से कुछ डेटाबेस के मैंने अभी यूज नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे. इफ यू नीड समथिंग लाइक, आप अगर आप इस मॉडल पे और डेटा चाहोगे, ये एक मॉडल और है हमारे पास. वंस यू कंप्लीट विद दिस, तो इसके क्वेश्चन अगर आपको रिक्वायर्ड होंगे तो आई गिव यू. ठीक है, ओके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको शेयर करेंगे. एंड डेटाबेसेस आई विल शेयर विद यू. डेटाबेस भी मैं आपको दूंगा, उनके डेटा भी मैं आपको दूंगा. ठीक है ओके, तो सारे इंसर्शन आपको करने हैं एंड देन उसके बाद यू कैन यूज इट. ओके तो बेसिकली एज अ डेटा एनालिस्ट, दिस इज आर नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि हम डीडीएल पर काम करते हैं. ये हमारा कोई काम नहीं होता. वी आर बेसिकली वर्क ऑन डीएमएल पार्ट. ओके, अच्छा ओके तो इसको सीखने के पीछे रीजन ये है कि राइट नाउ आई एम नॉट गिविंग यू इनबिल्ट डेटाबेस. पहले हम देते थे, बट है ना, कई बार क्या होता था, इफ देयर इज एनी चेंजेस इन डेटाबेस, इफ देयर इज एनी मॉडिफिकेशन इन द डेटाबेस एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, वहाँ क्या होता था, पर्सन को स्ट्रगलिंग होता था. तो वी इंक्लूड दैट पार्ट इन आल्सो इन दिस लेवल्स कि आपको ये भी करना है. पहले हम ये वाले पार्ट डिस्कस नहीं करते, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. ओके, तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना, वो इसके साथ में स्टार्ट करेंगे. हम पहले डेटाबेस बनाना भी सीखेंगे पूरा कंप्लीट. ओके, आफ्टर दैट वी मूव टू द डीएमएल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें किसी डेटा में कोई डेटा हमें इंसर्ट करना हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, डेटा. ओके, सो जब भी आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है, कोई डेटा अपडेट करना है, या कोई डेटा आपको डिलीट करना है, तो वी आर वर्किंग इन द डीएमएल पार्ट. और उसी के अंदर आपका डीडीएल डीक्यूएल भी रहता है. मतलब डीएमएल के अंदर ही डीक्यूएल कंसिडर किया जाता है. एंड वी आर लर्निंग अबाउट द सिलेक्ट क्वेरी. एंड मैंने यहाँ पे क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो मेंशन कर रखे हैं. द फर्स्ट वन इज योर सब क्वेरीज. आपको कॉन्सेंट्रेट करने से आपको सब क्वेरीज बनानी आनी चाहिए. ओके, सेकेंड आपको जॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि जॉइंट्स आपको आने चाहिए अच्छे से. ओके, उस पर मैं आपको असेसमेंट दूंगा, सिंपल से इजी से लेके इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे. ओके सेकेंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द विंडोज फंक्शन. ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बिकॉज इस पे इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं. ओके, एंड द थर्ड वन इज, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है जब भी आपको डेटा में से कोई भी पर्टिकुलर बड़े से बड़ा क्वेरीज हमें सॉल्व करना होता है. बहुत बड़ी बड़ी क्वेरीज जब हमें सॉल्व करनी होती है, so we need to learn about the CTE, common table expressions. And we also discuss about the stored procedures. Stored procedure basically आप जब ऑफिशियली कंपनी में काम कर रहे हो SQL के ऊपर, तो आपको एक्सेस नहीं होता है, बट आपको अपने खुद के काम के लिए ये बनाना आना चाहिए, ताकि आप उसमें क्या करो, कुछ रेगुलर वर्क के जो पार्ट रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई डेटा एक्सेल में लोड करना है फॉर द क्लाइंट पर्पस, ठीक है, फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस, तो मुझे उसे क्लीनिंग करते हुए लोड करना है. मैं एक्सेल में डेटा लोड करने के बाद क्लीनिंग करूंगा, इट विल टेक टाइम. तो उससे बेटर क्या है, आई जस्ट डिजाइन अ क्वेरी इन दैट फॉर्मेट कि मैं अपना क्वेरी इस तरीके से डिजाइन कर लूं कि मैं उसको क्लीनिंग कर सकूं बाद में आराम से. ओके, सो आप स्टोर प्रोसीजर्स से क्या होगा कि जैसे जो रेगुलर वर्क होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कई बार क्या होता है ना, डेटा निकालना होता है डेज वाइज, राइट, डे टू डेट.
अब मेरे को डे टू डेट अगर रिपोर्ट निकालनी है तो मेरे को बार बार क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद डेट मेंटेन करनी पड़ेगी। उससे बेटर है मैं एक छोटा सा फंक्शन टाइप, जैसे एक्सेल में हम फंक्शन यूज करते हैं डेटाडेफ टाइप का, ऐसा एक फंक्शन टाइप क्वेरी का सेक्शन बना ले जिसमें हम सिर्फ डेट पास करें उसके पैरामीटर में और उसे कॉल कर दें, और बाकी जो क्वेरी है वो हमारा एज इट इज रहेगा, हम उसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर ले। ठीक है, Okay. वो हमारा काम इजी गोइंग का रहता है। So that's why we are learning about stored procedure. Clear? So let me start with the DDL, data definition language. कुछ बेसिक कमांड्स मैं आपको बताऊंगा। I'll give you some basic information related to the DDL. आज मैं आपको टेबल क्रिएट करना बता दूंगा, एंड देन उसके बाद मैं आपको दो असाइनमेंट दूंगा आज, एक तो ये वाला, ओके, एंड एक ये वाला। Okay. ओके, इक्वल के लेक्चर्स बहुत छोटे होते हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, छोटे इन आई विल टेक ओनली 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, मैं आपको पूरा अच्छा। क्लियर कर दूंगा क्या चीजें हैं क्या नहीं है। मैं Okay. ज्यादा आपको मतलब बोलते हैं ना डिलीवरी सिस्टम, मेरा डिलीवरी सिस्टम में सीक्वल में ऐसा रहेगा कि मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। ओके, मैं आपको जैसे ये तीन चीजें आज बताऊंगा, बस टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं और बेसिक डेटा टाइप बताऊंगा, बट डेटा टाइप्स का भी पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी नहीं दूंगा। ठीक अभी है। मैं आपको टेबल बनाना, यूज, शो टेबल, डेटाबेस, ट्रंकेट, डीईएससी और डेटाबेस क्रिएशन बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है, जो फिर मैं आपको ईआर डायग्राम का पार्ट बताऊंगा कि ईआर डायग्राम रीड कैसे करते हैं, क्या होता है ईआर डायग्राम, हम्म। एंड उसके बाद आपको सिर्फ इन पे प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा डेटा नहीं दूंगा, ये तीन चीजें मैं आपको दूंगा, आपको सिर्फ बनाना है और कुछ ठीक नहीं है। करना। ओके। ठीक है, देन वी डिस्कस, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, वी आर कवरिंग डेटा टाइप्स इन डिटेल, ये एग्जैक्टली ये क्या है और हमें इनको कैसे तरीके से यूज करना चाहिए। एंड Okay. फिर दो पार्ट, दो 2 days वी स्पेंड ऑन द कंस्ट्रेंट, ओके, बिकॉज दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन दी डेटाबेस, और इसी के अंदर वी आर ऑल्सो लर्निंग अबाउट व्हाट डेटा मॉडलिंग। ये Okay. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारे लिए, बिकॉज विदाउट डेटा मॉडलिंग हम लोग है ना किसी भी मल्टीपल टेबल्स के रिलेशन नहीं बना पाएंगे। हम्म। ओके, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देन वी मूव टू दी ऑल्टर क्वेरीज, तो ठीक। ये पूरा वीक लेगा आपका, ठीक है, डीडीएल। ओके, देन उसके बाद इसमें टाइम कम लगता है डीक्यूएल में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत होते हैं, इसमें आपका काम सबसे ज्यादा रहेगा। ओके, ओके। तो लेट मी स्टार्ट विथ डीडीएल। मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, मैं एक डेटाबेस आपके सामने क्रिएट करके बताऊंगा, पहले चीजों को समझेंगे हम। ठीक है, तो दिस इज योर टूल, आपको पता है ऑलरेडी, टूल का टूर तो नहीं चाहिए, अदरवाइज आई विल गिव यू अ सिंपल टूर अगेन, नहीं, टूल का टूर तो आई नो। है ना। हाँ। ओके, सो दिस इज योर स्कीमास, दीज आर बेसिकली व्हाट, ये मेरे डेटाबेसेस है। डेटाबेसेस। ओके, आप देखोगे यहाँ पे ड्रम बने हुए हैं, दिस इज एन सिंबल ऑफ डेटाबेस। हम्म। ये मैं इसलिए फोकस करा रहा हूँ क्योंकि आप जो अदर डेटाबेसेस सिस्टम देखोगे, सिक्वल सर्वर देखोगे कभी, ठीक है, माइस्क्ल में आपको, उस पर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, आप ऑफिस के अंदर जो डेटाबेस देखोगे वो ओरेकल, सिक्वल सर्वर, या फिर पोस्टग्रेस, या फिर एसएपी या शेयर पॉइंट के डेटाबेसेस आप देखोगे। ठीक है, तो उसमें जितने भी ड्रम वाले सिंबल्स होते हैं ना, वो सारे ये ड्रम सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, डेटाबेस के लिए। ओके, तो अभी सपोज यहाँ पर हमारे पास काफी सारे डेटाबेसेस हैं, तो मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ स्टूडेंट नाम का। ठीक है, तो मेरे पास कोई स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है, ये रहा। सॉरी, मेरे को इसको ड्रॉप करना है, तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, पहले मैं इसको सिंपली बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास कोई स्टूडेंट नाम का डेटाबेस नहीं है। ठीक है, ठीक तो है। अब मैं एक छोटा सा डेटाबेस यहाँ पे बनाता हूँ। तो मैंने एक डेटाबेस बनाना है, तो बहुत सिंपल सा है, क्या लिखेंगे, क्रिएट कमांड होती है हमारे पास, और ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव इन द सेंस, आप कैपिटल में इसकी क्वेरीज लिखो, स्मॉल में क्वेरीज लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी उसको प्रोसेस कर सकते हो। ओके। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस, और सिंगल डेटाबेस बनाना है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग व्हाट डेटाबेस। ओके,
और दूसरी इसमें बेनिफिट क्या होता है कि whenever you are starting database, तो देखो नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा and you can use the tab for that. Okay, then you need to place the database name, and database name is what? Students. Okay, अब मैंने इसको सेमीकोलन वगैरह कुछ नहीं दिया, ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, इसको कंट्रोल एंटर करके चला दिया, कंट्रोल एंटर करके चला, नीचे चल गया मेरा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे स्कीमास के अंदर आपको स्टूडेंट नाम का डेटाबेस कहीं नहीं दिख रहा। ओके, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, अभी बताता हूँ क्यों नहीं दिख रहा। पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस एक्चुअली बना कि नहीं बना। तो हमें जब डेटाबेसेस बाय क्वेरी हमें अगर आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने डेटाबेसेस हैं, एक्चुअली डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, पहला तो हम यहाँ पे देख लेंगे, यस दिस इज क्रिएटेड। ओके, एक्शन आउटपुट में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन राइट हियर शो डेटाबेसेस। ओके, अब देखो मैंने इस क्वेरी को रन करा, तो देखो यहाँ पे है ना क्रॉस आ रहा है ना। अब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, एरर पढ़ना। आप एरर क्या आ रही है यहाँ पर, You have error in your SQL syntax. सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्यों आ रही है मैं बताता हूँ। ये सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक क्वेरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, पर दूसरी क्वेरी मैंने सेकंड लाइन में लिखी, बट मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये नहीं शो किया कि ये क्वेरी यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। अब जब सेमीकोलन लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेरी जो है इतनी है, सेमीकोलन इज काइंड ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है, ये क्वेरी यहाँ पर एंड अप हुई। अब हर क्वेरी के बाद में सेमीकोलन लगाना क्यों जरूरी होता है, दिस इज द रीजन कि आप नेक्स्ट क्वेरी लिखोगे तो न्यू टैब पे नहीं लिखोगे, वहीं उसी स्क्रिप्ट में काम करोगे, उसी पेज पे। तो क्या होता है कि ये आपको बहुत इजी कर देता है इन सब चीजों को मल्टीपल क्वेरीज चलाने में। कौन, सेमीकोलन, ठीक है। तो ये आप हैबिट बनाना कि आप हर बार जो है वो सेमीकोलन अप्लाई करते जाओ। ओके ओके, so this double dash is used for what, comments. Okay, so this is one DDL day 1. ठीक है, मैं आपको क्वेरीज जो शीट दिया, जो स्क्रिप्ट दूंगा सारी की सारी DDL day 1, DDL day 2, DDL day 3 के नाम से दूंगा। ओके ओके, और जिनमें टॉपिक्स मेंशन कर सकता हूँ उसमें मैं टॉपिक मेंशन कर दूंगा। ओके ओके, तो शो डेटाबेसेस को हम रन करते हैं, तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर डिटेल आ गई, काफी सारी आ गई। ये हमारे डेटाबेसेस है। आप देखो कुछ डेटाबेसेस आपको नहीं दिखाई देंगे इसमें, और वो डेटाबेसेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। देखो परफॉर्मेंस स्कीमा नहीं है मेरे पास यहाँ पर, तो दिस वन इज द इंटरनल डेटाबेस। ओके, ये हमारा स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट्स क्रिएट हो गया। ओके, अब आपको यहाँ पे चाहिए तो रिवर्सेबल एरो को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। यहाँ से आप रिफ्रेश करोगे बिकॉज इट्स वर्किंग ऑन सर्वर। अब इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद ये आ गया, ठीक है। ओके, अब बेसिकली क्या हो गया, डेटाबेस आपका बन गया। अब क्या होता है ना, कुछ कमांड्स हमारे पास है। अब एग्जैक्टली जो डेटाबेस बोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, समटाइम्स कोई भी डेटाबेस आपको बोल्ड नहीं दिखाई देगा। अगर कोई भी डेटाबेस आपको बोल्ड नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, कोई डेटाबेस एक्टिवेट नहीं है, आप किसी डेटाबेस के अंदर नहीं है। तो जैसे होता है ना एक्सेल में आपको वर्कबुक ओपन करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर शीट पर काम करने के लिए, तो वैसे ही अगर आपको पर्टिकुलर टेबल पर काम करना है तो आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा, या डेटाबेस एक्सेस में लेना पड़ेगा। इसके दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक होता है यूज कमांड जो होती है, वो हम यूज करते हैं बेसिकली किस लिए, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। डेटाबेस कौन सा एक्टिवेट करना है, स्टूडेंट वाला, तो मैंने स्टूडेंट्स लिया, जो लिखा वही लिखना है, ठीक है। और मैंने बोला ना केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल लिखना चाहते हो आप कैपिटल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना अभी डेटाबेस कौन सा एक्टिवेट है, वर्ल्ड वाला। अब जब हम इस कमांड को चलाएंगे हमारा कौन सा डेटाबेस एक्टिवेट हो गया, स्टूडेंट वाला। अच्छा, इसको मैं फुल कैप्स में भी लिख दूंगा जब भी, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो मैं इसको वर्ल्ड को वापस एक्टिवेट करता हूँ, मैं इसको वर्ल्ड को मैंने फुल कैप्स में लिखा, वर्ल्ड वाला एक्टिवेट हो गया, देखो ये आ गया। ओके, ठीक है। ओके, अब मैं स्टूडेंट्स को जो है वो स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर
स्पेलिंग मिस्टेक कर भी रखी है, हम्म, सपोज NTS लिख रखा है मैंने और आपके डेटाबेस में भी यही लिखा है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं यहाँ पे स्पेलिंग सही करके यूज करूँ तो नहीं चलेगा। हाँ हाँ ओके, दिस इज वेरी कंपल्सरी थिंग। तो ये हो गया आपका क्या स्टूडेंट्स। अगर देखो अब जैसे मैंने वर्ल्ड डेटाबेस को एक्सेस में लिया, वर्ल्ड डेटाबेस को एक्सेस में लिया तो वर्ल्ड डेटाबेस मेरे पास आ गया, हाँ क्योंकि स्टूडेंट में तो अभी हमारे पास टेबल्स नहीं है ना, इसलिए हम्म, मैं वर्ल्ड वाले में आया। तो वर्ल्ड वाले में मेरे पास 2 टेबल है, टेबल्स पे देखो ये रही टेबल्स, और टेबल के अंदर 2 टेबल आपको दिखाई देंगी, सिटी एंड सिटी एंड कंट्री कंट्री। लैंग्वेज। अब देखो यहाँ से तो आपको पता चल रहा है, आप क्वेरी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू कैन जस्ट राइट हियर शो टेबल, शो टेबल्स और सेमीकोलन। ये क्वेरी तभी काम करेगी जब वो एक्सेस में होगी। ओके, डेटाबेस आपका एक्सेस में होगा तभी ये काम करेगा। ओके, अच्छा जस्ट ओके। एक मिनट देना, एक को छोटा सा कॉल है। चलो कट गया, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आया आपको। वो क्वेरी कब काम करेगी, जब आपका डेटाबेस एक्टिव होगा। एक्टिव होगा। अगर आपका डेटाबेस एक्टिवेट नहीं है तो आपको दिक्कत देगा। देखो, और आपका डेटाबेस एक्टिवेट नहीं है और आप डेटाबेस का कोई एक्सेस में नहीं है तो ये टेबल्स वाला सेक्शन नहीं आएगा। ऑब्वियसली बात है, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने एक वर्कशीट देखी है हमको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, तो आपको उस डिपार्टमेंट का वर्कबुक ओपन करना पड़ेगा। ओपन करना पड़ेगा। द सेम विद दिस। यस, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं। ओके, सो दिस इज क्लियर। हाँ शो टेबल कैसे आएगा। अब हमारे पास एक और चीज थी DESC। क्या? DESC। ये 2 पार्ट होते हैं। अब सीक्वल में आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि एक ही चीज के मल्टीपल मतलब भी हो जाते हैं। एक तो आप शॉर्ट फॉर्म में DESC बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्क्राइब यूज करते हैं, डिस्क्राइब भी यूज करते हैं। दोनों चीजें आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, दोनों का सिस्टम सेम है। तो हमने जब सिटी नाम लिखा, दिस इज माय टेबल नेम, ये क्या करता है, आपका टेबल का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा देता है। ये देखो, ये आपको फील्ड्स दिख रही है सारी की सारी, कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो जो कॉलम होते हैं ना उनको फील्ड्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। ठीक है। एंड ये हो गया हमारी डेटा टाइप। ये आईडी जो है इंटीजर टाइप की है, सिटी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ये लास्ट वाला पॉपुलेशन जो है वो इंटीजर टाइप का है। ये होते हैं कंस्ट्रेंट जो हम लोग स्टडी करेंगे, जिनके मैं बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये वो होते हैं कंस्ट्रेंट। नल, यहाँ पे कीज देखेंगे हम, डिफॉल्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा, अलग अलग कंस्ट्रेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर से लिखा डिस्क्राइब भी लिख देता हूँ। तो मैं सेम चीज आपको निकाल के बता रहा हूँ। मैं सेम चीज की जगह मैं यहाँ पे कंट्री वाला डेटा ले लेता हूँ, कंट्री लैंग्वेज। ओके, तो ये मेरी दूसरी टेबल है। तो देखो, DESC से भी आपका सेम चीज आता है और डिस्क्राइब से भी आपका सेम डिटेल है। ओके ओके, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। दोनों क्या करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट। यहाँ तक तो चीजें क्लियर थी। ये चीजें थी कि जब आपके पास कोई डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है तब आप कैसे काम करोगे। ओके, अब पॉइंट आता है कि टेबल क्रिएशन कैसे करते हैं। ओके अच्छा। तो दिस वन इज टेबल क्रिएशन, ठीक है। टेबल क्रिएशन इज व्हाट, जब भी आपको टेबल क्रिएट करनी है तब पहले तो किस डेटाबेस में आपको टेबल क्रिएट करनी है, दैट इज वेरी कंपलसरी कि आपको पहले वो एक्सेस में एक्टिव। करना पड़े। तो एक तो हमारे पास यूज कमांड थी, दूसरा तरीका क्या है, वी जस्ट गो देयर एंड डबल क्लिक ऑन द डेटाबेस। अच्छा। उससे भी आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट कि हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट। अब क्या क्रिएट करना है, टेबल, टेबल। टेबल दे दिया, ठीक है। अब वो और भी जो कीवर्ड्स आते हैं मैं आपको बताता जाऊंगा उनकी यूजेस क्या है। ओके, जैसे टेबल लिखोगे तो टेबल में आप देखोगे तो नीचे टेबल स्पेस भी आ रहा है। जस्ट यूज टेबल राइट नाउ, ठीक है। बहुत सारे मतलब होते हैं, बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, तो अभी हौच पौच नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से हमें चीजों को समझना है। ओके, क्रिएट टेबल करा, व्हाट्स योर टेबल नेम, सपोज माय टेबल नेम इज 2 अंडरस्कोर डिटेल। पहली चीज
जब भी आप नाम दे रहे हो, टेबल का नाम दे रहे हो या डेटाबेस का नाम दे रहे हो, तो या फिर आप डेटा कॉलम यानी कि फील्ड का नाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आप उसमें ना स्पेस नहीं ले सकते। ओके ओके, आप इस तरीके से लिख दो या आप अंडरस्कोर करके लिख दो, ये ठीक दो है। तरीके होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक नेमिंग कन्वेंशन और बता देता हूँ, इसमें अभी नेमिंग कन्वेंशन में आपको डिफाइन करूंगा नीचे कैसे कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। ओके ओके, so this is my student detail. ओके, एंड उसके बाद आपको देना होता है कॉलम नेम। सपोज मैंने दिया आईडी। ओके, ये ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगा के मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। तो मेरे को क्या देना है, आईडी। आईडी के आगे हमें देना है क्या, देखो इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने आईडी के आगे दिया उसका डेटा टाइप, कि मुझे किस टाइप का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे ओके काफी सारे विल डिस्कस इन डिटेल। अभी आप क्या यूज करोगे, इंटीजर। अगर न्यूमेरिकल डेटा यूज करना है तो आप इंटीजर यूज करो, फिर कॉमा दिया। अब आपको स्टूडेंट का नेम चाहिए, stu_nm, ठीक है। अब आपका स्टूडेंट नेम किस फॉर्मेट में होता है, आपको यूज करना है क्या, वैरचर, ठीक है। अब वैरचर जब भी दोगे तो उसके आगे ब्रैकेट लगा के आपको उसका साइज देना कंपलसरी है। ओके, ठीक है। तो वैरचर क्या करता है, जो आपका टेक्स्ट डेटा होता है उसको स्टोर कर लेते हैं। अभी बस ओके। इतना ही आपको समझना है, उससे ज्यादा मत समझना क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई, आपको जो भी चीज स्टोर करनी है, लाइक मुझे एड्रेस स्टोर करना है, आई यूज वैरचर एंड अंडर ब्रैकेट 20 अगेन, क्योंकि मेरा ये भी रहता है। अब लास्ट में मैं क्या करूंगा, अपना ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ये मैं एक लाइन में भी लिख सकता था, बट मैंने अलग अलग लाइन में इसलिए लिखा ताकि हमें चीजें बहुत सिस्टमेटिकली दिख जाए। ठीक है। एक लाइन में लिखेंगे तो कई बार क्या होता है ना, बहुत लंबा चला जाता है तो स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है हमें। ओके। और लास्ट में आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और सेमीकोलन, सेमीकोलन। एंड स्टू ठीक है। स्टू डिटेल्स हमारा टेबल का नेम है और ये आईडी और एड्रेस ये सब हमारे ये फील्ड नेम है। कॉलम्स या फील्ड नेम्स हैं। ठीक है। यस, करेक्ट। तो जिसके आगे एड्रेस देना, जिसके आगे साइज देना, वो साइज देना कंपलसरी। ओके, अच्छा ओके। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कोई एरर नहीं आई, एग्जीक्यूट हो गया। अब इस टेबल को देखेंगे कैसे, बहुत सिंपल तरीका है, वी यूज व्हाट, TESC। और आपका टेबल का नाम क्या है, स्टू डिटेल्स। _details। ओके, अब ये तो ठीक है, लेकिन आप देखो यहाँ पे कहीं टेबल दिखाई दे रही है आपको, नहीं ना, नहीं। सर्वर है। आपको क्या करना पड़ता है, इसको रिफ्रेश। रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करोगे, देखो ये डिटेल आ गई। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से देख लो। कई बार आप देखोगे जब मैं काम कर रहा हूँ मल्टीपल डेटाबेस पे, आप मेरी हैबिट देखोगे, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये जो डिटेल होती है ना, जब हम क्वेरी लिख रहे होते हैं, कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ से हमें कॉलम नेम्स पता चल जाते हैं, उनके डेटा टाइप पता चलते रहते हैं, ताकि हम इजिली उनको यूटिलाइज कर सकें। सपोज कुछ कैलकुलेशन बना के एक नया कॉलम ऐड ऑन करके हमें एक्सट्रैक्ट करना है डेटा को, तो हम लोग इन सब चीजों का यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, ओके। ठीक है। अब मेरे को स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पे मेरे को रिफ्रेश करने से मिला, अदरवाइज आप क्या करते, शो टेबल्स वाली कमांड चला देते। अब होता क्या कि जैसे मेरे को शो टेबल्स वाली कमांड देखनी है, तो क्या होगा, अक्सर लोग क्या करते हैं, नीचे जाके फिर से लिखते हैं शो टेबल्स, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी ऑलरेडी कमांड लिखी हुई है तो ये प्रोग्राम वाला फॉर्मेट नहीं होता, ये क्वेरीज होती है। अभी आप कौन से डेटा में हो, स्टूडेंट कौन में। से डेटा, स्टूडेंट डिटेल्स में। मैंने शो टेबल चलाऊंगा तो किसका टेबल दिखाएगा मुझे, स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स वाली। अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप डिस्क्राइब यहाँ से नेम चेंज करके भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। तो जिधर मुझे चेंज करना था वहां मैंने अलग से लिख लिया, बाकी नहीं तो मैं पहले जो क्वेरी मेरी ऑलरेडी असाइंड थी वही क्वेरी यूज करके मैं काम चला सकता हूँ। ओके। ओके, तो ये चीज क्लियर हुआ यहाँ पर हाँ। कि किस तरीके से हमें डिटेल्स आइडेंटिफाई करनी है। ओके, सो अभी मैं आपको एक छोटा सा, मतलब एक छोटा सा एक टेस्टिंग मोड दूंगा कि आप एक बार बना के देखना, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना जरूरी है। क्योंकि ठीक एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा ये आपको क्वेरी का फॉर्मेट समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा असेसमेंट दे रहा हूँ, असेसमेंट इन द सेंस, पहले मैं आपको ईआर डायग्राम समझा देता हूँ। ये हमारा ईआर डायग्राम होता है,
ओके, तो बेसिकली इस डायग्राम को हम लोग पहले ईयर डायग्राम बोलते थे, लेकिन अभी जो है हम इसको बोलते हैं EER डायग्राम, एनहांस एंटिटी रिलेशनशिप। ओके, मैं आपको DBMS स्टडी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको क्या स्टडी करा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यही पढ़ते हैं और इसी पे ही काम करते हैं। हम लोग काम करते हैं RDBMS पे। ओके, RDBMS इज बेसिकली स्टैंड फॉर व्हाट? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ओके। पहले क्या था DBMS पे? DBMS में आप मल्टीपल टेबल्स तो बना लेते थे, लेकिन टेबल्स आपस में कनेक्शन नहीं दे पाते थे। अच्छा। okay? फिर EF कॉर्ड ने 1970 में एक इंट्रोड्यूस किया RDBMS कॉन्सेप्ट। ओके, सॉरी मैं ईयर शायद गलत बोल गया। RDBMS कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। RDBMS कॉन्सेप्ट में उन्होंने हमें ये बताया कि जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये जो आप लिंकिंग देख रहे हो यहाँ पर, ये लाइन जा रही है, तो हाँ। इस तरीके से आप RDBMS को क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो टेबल्स को। ओके। तो ये आपका एक पोर्शन था कि जो हम लोग इसके अंदर यूटिलाइज करते थे कि भाई RDBMS का बेनिफिट क्या है हमारे को। ओके, ओके। क्लियर? हाँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे RDBMS में कि हमारे पास क्या है ना, सो नॉर्मली आप टेबल कनेक्शन देख सकते हो। अब ये डायग्राम्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। पहले ये डायग्राम जो होते थे, पहले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे। ओके, अब थोड़ा इजी हो गया। तो दीज आर व्हाट? ये तीनों चीजें क्या है? डिफरेंट टेबल्स। करेक्ट, दीज आर टेबल्स। ओके, अब इस टेबल्स में आपके पास क्या क्या चीजें हैं? इस टेबल, ये टेबल का नाम है, ये हो गया आपका टेबल का नाम जो आप रखोगे हमेशा। तो जैसे मैं आपको डायग्राम दूंगा, इनमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी। ओके। जो डेटा टाइप आपको यहाँ लिखा हुआ है, वही डेटा टाइप आपको यूज करना है। ओके। हेलो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट आईडी। हेलो। 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 नितिश, am I audible? हाँ, अब आ रही है आवाज, बीच में चली गई थी। ओके, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था, ओके, मेरा पॉइंट ये था, आपको विजिबल है स्क्रीन? हाँ वह। हाँ। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये था कि RDBMS का यूजेस क्या था और रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने सेम पढ़े, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारे को क्या है ना, सेम चीज प्रोसेस करनी थी। सेम चीज प्रोसेस मतलब जैसे आप भी सेम मोड पे रहो, मैं भी सेम मोड पे रहूं, तो जो डेटा मॉडलिंग का काम होता है, जो ये डेटाबेस डिजाइनिंग का काम होता है, ये एक पर्टिकुलर टीम हमें करके देती है। ओके। सो हमारा बेसिकली काम नहीं है, वो DBA वालों का काम होता है। तो बट हमें अभी सीखने के लिए हम लोग सारी चीजें देखेंगे और समझेंगे। ओके। एंड यस, ये जो RDBMS का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो EF कॉर्ड ने 1970 में ही इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज ईयर का वो फॉर्मेट था। तो ये अभी जो जितने भी मेजर डेटाबेसेस आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर, वो सारे के सारे RDBMS है। ओके, ओके। और आप जो भी चीजें अभी शेयर पॉइंट, SAP, इन सब चीजों में जो भी आप मेंटेन करते हो, वो सारे के सारे क्या है? RDBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। ओके, तो मैं आपको है ना, ये पिक्चर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज इसका मेरे पास असाइनमेंट अभी भी अवेलेबल है, डेटाबेस भी मेरे पास अवेलेबल है। हम इसके असाइनमेंट प्रोसेस करेंगे, आपको करना है बेसिकली। ठीक ओके। है,
पूरे 115 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल से है, आपको जैसे भी सोचना है वैसे आप सोच के उनको कंप्लीट करते जाना, ठीक है, ठीक है। साइड बाय साइड, टॉपिक वाइज, जैसे जैसे हाँ टॉपिक होते जाएंगे आप उसको कवर अप करो। मैं ओके आपको ये शेयर कर रहा हूँ, अभी आप एक एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बनाओगे, एंड देन उसके बाद जस्ट एक डिपार्टमेंट नाम का जो वो है क्या टेबल बोलते हैं बनाना। टेबल आपको बनानी है, ठीक है। ठीक है। तो आई शेयर टू थिंग्स, पहला मैं आपको पिक्चर इमेज जो है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये इमेजेस आपको संभाल के रखना, ये खो गई तो आपको डेटाबेस में बहुत दिक्कत आएगी, बट मैं आपको बता दूंगा कि डेटाबेस में इन सब इमेजेस को हम निकालते कैसे हैं। मतलब हम लोग इसमें भी बनाते हैं, ओके। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वो सब चीजें सीख के अपने पास रखना है कि भाई कहाँ से कैसे हम लोगों को डिजाइन करना है। ठीक है। ये इसका नाम रख रहा हूँ मैं DDL1 A1, आपको क्वेरी भी भेज रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर दो तब तक। अच्छा आप डाउनलोड कर लो पहले फिर स्क्रीन शेयर कर देना। मैंने आपको शेयर कर दिया। DDL-1 भी ओपन करना है? हाँ वो आपके सपोर्ट के लिए रहेगा कि आप उसमें से क्वेरी देख सकते हो, अगर कुछ सिंटैक्स इश्यूज हो सकते हैं तो वो तो आप हैंडल कर सकते ओके, तो किस फाइल में ये वर्कबेंच में ओपन होएगी DDL-1? हो। आपने डाउनलोड कर लिया दोनों चीजें? वर्कबेंच कर लिया, हाँ। नहीं नहीं, दोनों हाँ वो दोनों चीजें कर लिए डाउनलोड। डाउनलोड, हाँ। हाँ अब आप स्क्रीन शेयर कर दो। तो ये ऐसे, हाँ ऐसे ओपन नहीं करना, आप इसको क्या करोगे, आप नीचे से वर्क बेंच ओपन करो, क्योंकि आपके उसमें ना सिक्वल सर्वर भी पड़ा हुआ है ना, इसलिए आप इसको माई एसक्यूएल कनेक्शन ओपन करो। इसको भी ओपन करना मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है। ठीक है। 1 मिनट, आपका सर्वर कैसे चला गया? नो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। हाँ, एक बार फिर से ओपन करना। बंद कर दूं तो इसे? हाँ इसको बंद करके दोबारा ओपन करो, सर्वर चला गया आपका। सर्वर चला गया इसका। आप एक काम करो, माई एसक्यूएल का जो मैंने वो डाउनलोड कराया था 2.1 MB वाला इंस्टॉलर, हाँ। उसको ओपन करो। ये अभी काम नहीं करेगा। अब इसमें पहले रिमूव पर क्लिक करो और सर्वर पे क्लिक करो, सबसे पहले टिक।
और नेक्स्ट कर दो। सिर्फ सर्वर पर प्रॉब्लम है ना, सिर्फ सर्वर हटाएंगे हम। रिमूव, हाँ नेक्स्ट एग्जीक्यूट। कर दो। तो ये क्यों हुआ कि मतलब सर्वर चला नहीं? आई थिंक आपके में ना वो भी इंस्टॉल्ड है ना SQL सर्वर, अच्छा, तो कई बार क्या होता है ना, क्लैश हो जाते हैं सर्वर आपस में, तो सर्वर हट जाता है। आप SQL सर्वर यूज करते हो? नहीं मतलब एक्चुअली मतलब मेरा लैपटॉप कोई और भी यूज करता है तो मे बी उन्होंने करा। ओके, तो फिनिश। इसलिए वो सर्वर हट गया होगा। ओके, हाँ इसको फिनिश करो। अब ऐड पे क्लिक करो, ऊपर सबसे टॉप पे। ऐड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड अवेलेबल प्रोडक्ट, उसमें सर्वर्स पे क्लिक करो। हाँ, प्लस 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 पे क्लिक करो, प्लस पे। अभी फिर प्लस पे क्लिक करो, अब फिर प्लस पे क्लिक करो। अब पहला वाला सर्वर चूज करो। अब ग्रीन एरो पे क्लिक करो। अब नेक्स्ट करो, एग्जीक्यूट करो। इस टूल में प्रॉब्लम रहेगा ये वाला, ठीक है। आपको कई बार ऐसा होगा कि कुछ और इंस्टॉल कर रहे होगे ना, तो कोई सर्वर बेस्ड चीज इंस्टॉल कर रहे होगे, तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग सर्वर इंस्टॉल करते समय, कॉन्फ़िगर करते समय, वो हम पे परमिशन ग्रांट करते हैं कि आप पोर्ट नंबर चेंज कर लो या चीजें चेंज कर लो, अपनी लोकेशन चेंज कर लो। तो जो इंस्टॉलेशन कर रहा है पर्सन, अगर उसने लोकेशन चेंज नहीं करी और प्रॉब्लम क्रिएट, कुछ भी चेंजेस नहीं करे या उसको पर्टिकुलर लोकेशन नहीं दी, तो ये आपका प्रीवियस सर्वर को रिमूव कर देते हैं, ओके, नया इंस्टॉल कर देते हैं। तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है और सर्वर क्रैश हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, पासवर्ड डाल दो। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। तो ऐसे कभी सर्वर चला जाए तो या पासवर्ड भूल जाओ या पासवर्ड एक्सेस में नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा भी होता है पासवर्ड भूल जाते हैं हम लोग, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर हटाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, आप ओके, सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट एडिट करके उसको यूज कर सकते हो। ओके, फिनिश करो, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर कराएगा, नेक्स्ट करो। फिनिश। फिनिश करो, ठीक है, सर्वर आ गया। हाँ इसको क्लोज कर दो, MySQL दोबारा रिस्टार्ट करो, कनेक्ट करो। यस, आपका सर्वर कनेक्टेड है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में जाके चेक करो सर्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे हाँ, ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से इन सब चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो। अब आपके पास टास्क क्या है, मैं आपको टास्क बता देता हूँ। टास्क है आपके, पहला तो मैंने आपको जो डायग्राम दिया है, तो डायग्राम आपको समझ में आ गया? हाँ, उसमें कोई इशू नहीं, नहीं है ना? तो आपको नहीं, ये तीनों टेबल्स बनानी है, ठीक है। ठीक है। और एक और मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो दोनों टेबल्स भी आपको बनानी है, ओके, ओके। एंड कल सुबह, आपको पता ही है, कल सुबह 11:30 बजे पावर भी है। पावर भी है। और मैं आपको एक टेबल और भेज रहा हूँ, एक मिनट रुकना। भी डेटाबेस के नाम से मैंने आपको भेजा है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर डेटाबेस और इन दोनों के ऊपर असेसमेंट में आपको दे दूंगा, ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, इनकी टेबल्स बनानी है। अब इसमें क्या है ना, एक्सेल में क्लासेस सबसे ज्यादा मेरे एंड पे चल रही थी, इससे सबसे ज्यादा काम आपको करना है, ओके। क्योंकि आपका काम करना जरूरी है SQL में, आप जितना चीजें बनाओगे आपके लिए रहेगा, ओके, ओके।
तो मैं आपको 15 to 20 मिनट्स स्टार्टिंग के हाफ एन आवर सेशन दूंगा और हाफ एन आवर आप फ्रंट में मेरे ये सब चीजें परफॉर्म करोगे। ठीक है। ठीक है, ये हम इसमें पैटर्न रखेंगे पूरा। ठीक है, तो ये मतलब मुझे अभी खुद से क्रिएट करके नहीं रखना? अब आपको क्रिएट करके रखना है ना इसको। आपको ठीक दो है। डेटाबेस बनाने हैं, एक मूवी वाला एक एम्प्लॉय वाला। ठीक ठीक है। है, और जो डेटा टाइप इसमें दिए हैं वही डेटा टाइप आपको मेंशन करना है और कोई डेटा टाइप मेंशन मत करना। ओके। ठीक है, मूवी वाले में आप चेंज कर सकते हो। अभी मैंने आपको 3 बताए, अगर आपको टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ दिखाई दे या कैर लिखा हुआ दिखाई दे, आप उधर वेर कैर यूज कर लेना। ठीक है। ओके, इनको आपको ध्यान रखना है हमेशा। ओके। ओके ओके, ठीक है। ये अपन यस, ये DDL Day 1 हाँ मतलब मैंने किसके थ्रू ओपन होएगा? यस यस ये ओपन करना मैं बता भूल गया था। आप एक काम करो, उस पर जाओ माइस्क्वेल पे, हाँ। ओपन किया। हाँ, अब आप फाइल पे जाओ। फाइल में ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट है। दो तरीका होता है, जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना उसके ऊपर तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगी, आपको क्वेरी बार बार कॉपी करके चलानी पड़ेगी। अगर आप उसको क्वेरी स्क्रिप्ट फॉर्मेट में, एसक्यूएल स्क्रिप्ट फॉर्मेट में ओपन करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। ओपन करो, क्लिक कर दो। अब जाओ डाउनलोड्स में उठा लो, ये आ गया। अब देखो ये सारी की सारी क्वेरीज है, आप इनको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। अच्छा, ओके। अगर आप उस पर डबल क्लिक करते ना तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाती है, आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके। ओके। ओके, तो ठीक। दिस इज अ पॉइंट कि ये चीजें आपको हैंडल रहेंगी। और ओके। वो डिलीट मत करना जो आपको डाउनलोड करवाया था ना इंस्टॉलर। हाँ हाँ, ओके। ठीक है। ठीक है, कभी सर्वर जाता है तो हम उसी से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ओके, ठीक है ओके। नितेश, मैं आपको शेयर वीडियो वीडियो आपको मिल रहा है ना यूट्यूब पे? हाँ। ठीक है, ठीक है। ओके नितेश, तो ओके। कल कनेक्ट करते हैं अपन 11:30 बजे। ओके, ठीक। बाय बाय। कल अच्छा पावर भी है, आप ही लोगे क्लास? हाँ जी, वो पावर ठीक क्लास में लूंगा। है। ओके। ओके। ओके, थैंक यू। ओके।